روزے کی فضائل و مسائل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم گناہوں سے بچو چند دنوں کا پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے اور جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا پھر جو زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کو اور ہدایت حق و باطل میں جدائی بیان کرنے کے لیے تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے اس کا روزہ رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے سختی کا ارادہ نہیں فرماتا اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور اس امید پر کہ اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اے محبوب جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں جب یہ مجھے پکاریں تو انہیں چاہیے کہ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں اس امید پر کہ راہ پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں عورتوں سے جمع ہم بستری حلال کیا گیا وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے ہو تو تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے معاف فرمایا تو اب ان سے جمع کرو اور اسے چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے پھر رات تک روزہ پورا کرو اور ان سے جمع نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں معتکف ہو یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ اللہ اپنی نشانیاں یوں ہی بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ بچیں۔ روزہ بہت عمدہ عبادت ہے اس کی فضیلت میں بہت حدیثیں ہیں۔ حدیث ن.1 صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جنزیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور امام احمد اور ترمذی و ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور منادی پکارتا ہے اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو اور اے شر کے چاہنے والے باز رہ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے امام احمد و نسائی کی روایت انہی سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آیا یہ برکت کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے تم پر فرض کیے اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی بھلائی سے محروم رہا بے شک محروم ہے۔ حدیث ن.2 ابن ماجہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہتے ہیں رمضان آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ آیا اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو اس سے محروم رہا ہر چیز سے محروم رہا اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے۔ حدیث ن.3 بہقی شعب الایمان میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور سائل کو عطا فرماتے۔ حدیث ن.4 بہقی شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت ابتدائے سال یعنی شروع سال سے سال آئندہ آنے والے سال تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حوروں پر چلتی ہے وہ کہتی ہیں اے رب
تو अपने बंदों से हमारे लिए उनको शौहर बना जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों और उनकी आंखें हमसे ठंडी हों। हदीस न डॉट 5 इमाम अहमद अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रावी की हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमजान की आखिर शब में उम्मत की मग़फ़िरत होती है। अर्ज़ की गई, क्या वह शबे कद्र है? फरमाया, नहीं, लेकिन काम करने वाले को उस वक्त मजदूरी पूरी दी जाती है जब वह काम पूरा कर ले। हदीस न डॉट 6 बहकी शोअबुल ईमान में सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रावी कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर दिन में वज फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे पास अजमत वाला बरकत वाला महीना आया, वह महीना जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। उसके रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए और उसकी रात में कियाम, नमाज व तत्व वो जो इसमें नेकी का कोई काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फर्ज अदा किया, और इसमें जिसने फर्ज अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फर्ज अदा किए। यह महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है, और यह महीना मुवासात हमदर्दी का है, और इस महीने में मोमिन का रिज्क बढ़ाया जाता है। जो इसमें रोजादार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मगफिरत है, और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाएगी, और इस इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सुवाब मिलेगा जैसा रोजा रखने वालों को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अज्र में से कुछ कम हो। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम में का हर शख्स वह चीज नहीं पाता जिससे रोजा इफ्तार कराए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यह सवाब उस शख्स को देगा जो एक घूंट दूध या एक खुरमा, छुआरा या एक घुट पानी से इफ्तार कराए, और जिसने रोजदार को भरपेट खाना खिलाया उसको अल्लाह ताला मेरे हौज से पिलाएगा कि कभी प्यासा न होगा यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। यह वह महीना है कि इसका अव्वल शुरू के 10 दिन रहमत है, और इसका औसत दरमियान के 10 दिन मगफिरत है, और इसका आखिर जहन्नम से आजादी है। जो अपने गुलाम पर इस महीने में तकफीफ करे यानी काम में कमी करे, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और उसे जहन्नम से आजाद फरमाएगा। हदीस न डॉट 7 सही हैं व सुन्ने तिर्मिजी व नसई व सही इब्ने खुजैमा में सहल इब्ने सद रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजे का नाम रेहान है, उस दरवाजे से वही जाएंगे जो रोजे रखते हैं। हदीस न डॉट 8 बुखारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो ईमान की वजह से और सवाब के लिए रोजा रखेगा उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जो ईमान की वजह से और सवाब के लिए शबे कद्र का कियाम करेगा उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस न डॉट 9 इमाम अहमद व हाकिम और तबरानी कबीर में और इब्ने अबिद दुनिया और बहकी शोबुल ईमान में अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रावी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजा व कुरान बंदे के लिए शफात करेंगे। रोजा कहेगा, ए रब, मैंने खाने और ख्वाहिशों से इसे दिन में रोक दिया, मेरी शफात इसके हक में कबूल फरमा। कुराश कहेगा, ए रब, मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफात इसके बारे में कबूल कर, दोनों की शफातें कबूल होंगी। मसाइले फिहिया। मसला 1, रोजा शरीयत की बोलचाल में मुसलमान का इबादत की नियत से सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक अपने को कसदन जानबूझकर खाने पीने जिमा हम बिस्तरी से बाज रखना। औरत का हैज व निफास से खाली होना शर्त है। मसला 2, रोजे के 3 दर्जे हैं, एक आम लोगों का रोजा की यही पेट और शर्मगाह को खाने पीने जिमा हम बिस्तरी से रोकना, दूसरा ख्वास का रोजा की उनके अलावा कान, आँख, ज़बान, हाथ, पाँव और तमाम आज़ा को गुनाह से बाज रखना, तीसरा खासुल खास का रोजा की अल्लाह ताला के अलावा तमाम चीजों से अपने को पूरी तरह जुदा करके सिर्फ उसी की तरफ मुतवज्जह रहना। मसला 3, रोजे की 5 किस्में हैं। 1,
فرض 2 واجب 3 नफल 4 मकरूह तंजीही 5 मकरूह तहरीमी। फर्ज व वाजिब की दो किस्में हैं, मुअय्यन व गैर मुअय्यन। फर्ज मुअय्यन जैसे कज़ाए रमजान यानी रमजान का रोजा जो छूट गया, और रोजाए कफ्फारा जो कफ्फारा लाजिम होने पर रखा जाए। वाजिब मुअय्यन जैसे नजरे मुअय्यन, वाजिब गैर मुअय्यन जैसे नजरे मुतलक। नफल 2 हैं, नफले मसनून, नफले मुस्तहब। नफले मसनून जैसे आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का रोजा और उसके साथ नबी का भी, और नफले मुस्तहब हर महीने में 13वीं, 14वीं, 15वीं और अरफे का रोजा, पीर और जुमेरात का रोजा। शश ईद के रोजे यानी ईद के 6 रोजे, दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे यानी एक दिन रोजा एक दिन इफ्तार। मकरूह तंजीही जैसे सिर्फ हफ्ते के दिन रोजा रखना, नैरोज मेहरगान के दिन का रोजा, सौमे दहर यानी हमेशा रोजा रखना, सौमे सुकूत यानी जिसमें कुछ बात न करे, सौमे विसाल की रोजा रखकर इफ्तार न करे और दूसरे दिन फिर रोजा रखे, यह सब मकरूह तंजीही हैं। मकरूह तहरीमी जैसे ईद और अय्याम तशरीक, बकरीद और उसके बाद के 3 दिन के रोजे। मसला 4 रोजे के मुख्तलिफ असबाब वजह हैं। रोजे रमजान का सबब माह रमजान का आना, रोजे नजर का सबब मन्नत मानना, रोजे कफ्फारा का सबब सम तोड़ना या कत्ल या जिहार वगैरह। मसला 5 माह रमजान का रोजा फर्ज जब होगा कि वह वक्त जिसमें रोजे की इब्तिदा शुरुआत कर सके, यानी सुबह सादिक से जहवे कुबरा तक की, इसके बाद रोजे की नियत नहीं हो सकती, लिहाजा रोजा नहीं हो सकता, और रात में नियत हो सकती है मगर रोजे की महल नहीं, यानी रात रोजे का वक्त नहीं मगर नियत हो जाएगी। लिहाजा अगर मजनून को रमजान की किसी रात में होश आया और सुबह जुनून की हालत में हुई या ज़हवे कुबरा के बाद किसी दिन होश आया, तो उस पर रमजान के रोजे की कज़ा नहीं, जबकि पूरा रमजान इसी जुनून में गुजर जाए और एक दिन भी ऐसा वक्त मिल गया जिसमें नियत कर सकता है, तो सारे रमजान की कज़ा लाजिम है। मसला 6 रात में रोजे की नियत की और सुबह गशी की हालत में हुई और यह गशी कई दिन तक रही, तो सिर्फ पहले दिन का रोजा हुआ, बाकी दिनों का कज़ा रखे, अगरचे पूरे रमजान भर गशी रही, अगरचे नियत का वक्त न मिला। मसला 7 रमजान के रोजे की अदा और नजरे मुअय्यन और नफल के रोजों की नियत का वक्त गुरूबे आफ्ताब से जहवे कुबरा तक है। इस वक्त में जब नियत कर ले यह रोजे हो जाएंगे। लिहाजा आफ्ताब डूबने से पहले नियत की कल रोजा रखूंगा, फिर बेहोश हो गया और ज़हवे कुबरा के बाद होश आया तो यह रोजा न हुआ, और आफ्ताब डूबने के बाद नियत की थी तो हो गया। मसला 8 जहवे कुबरा नियत वक्त नहीं बल्कि इससे पेशतर पहले नियत हो जाना जरूरी है, और अगर खास वक्त यानी जिस वक्त आफ्ताब खत्ते निस्फ़ुन नहारे शरई पर पहुंच गया नियत की तो रोजा न हुआ। मसला 9 नियत के बारे में नफल आम है, सुन्नत व मुस्तहब व मकरूह सबको शामिल है कि इन सब के लिए नियत का वही वक्त है। मसला 10 जिस तरह और जगह बताया गया कि नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कहना शर्त नहीं, यहाँ भी वही मुराद है, मगर ज़बान से कह लेना मुस्तहब है। अगर रात में नियत करे तो यूं कहे। तर्जमा मैंने नियत की कि अल्लाह ताला के लिए इस रमजान का फर्ज रोजा कर रखूंगा, और दिन में नियत करे तो यह कहे। तर्जमा मैंने नियत की कि अल्लाह ताला के लिए आज रमजान का फर्ज रोजा रखूंगा, और अगर तबर्रुक व तलबे तौफीक के लिए नियत के अल्फाज में इंशाअल्लाह ताला भी मिला लिया तो हर्ज नहीं, और अगर पक्का इरादा न हो, मुज़बज़ब हो यानी कभी हाँ कभी न हो, तो नियत ही कहाँ हुई। मसला 11 दिन में नियत करे तो यह जरूर है कि यह नियत करे कि मैं सुबह सादिक से रोजादार हूँ, और अगर यह नियत है कि अब से रोजादार हूँ सुबह से नहीं तो रोजा न हुआ। मसला 12 अगरचे उन 3 किस्म के रोजे की नियत दिन में भी हो सकती है मगर रात में नियत कर लेना मुस्तहब है। यूं नियत की कि कल कहीं दावत हुई तो रोजा नहीं, और न हुई तो रोजा है, यह नियत सही नहीं, बहरहाल वह रोजादार नहीं। मसला 13
रमजान के दिन में न रोजे की नियत है न यह कि रोजा नहीं, अगरचे मालूम है कि यह महीना रमजान का है तो रोजा न हुआ। मसला 14। रात में नियत की और फिर उसके बाद रात ही में खाया पिया तो नियत जाती न रही, वही पहली काफी है, फिर से नियत करना जरूरी नहीं। मसला 15। हैज व निफास वाली थी, उसने रात में कल रोजा रखने की नियत की और सुबह सादिक से पहले हैज व निफास से पाक हो गई तो रोजा सही हो गया। मसला 16। दिन में वह नियत काम की है कि सुबह सादिक से नियत करते वक्त तक रोजे के खिलाफ कोई अमन काम न पाया गया हो, लिहाजा अगर सुबह सादिक के बाद भूल कर भी खा पी लिया हो या जिमा हम बिस्तरी कर लिया तो अब नियत नहीं हो सकती, मगर मोतमद यह है कि भूलने की हालत में अब भी नियत सही है। मसला 17। जिस तरह नमाज में कलाम की नियत की मगर बात न की तो नमाज फासिद न होगी, यूं ही रोजा में तोड़ने की नियत से रोजा नहीं टूटेगा जब तक तोड़ने वाली चीज न करे। मसला 18। अगर रात में रोजे की नियत की फिर पक्का इरादा कर लिया कि नहीं रखेगा तो वह नियत जाती रही, अगर नई नियत न की और दिन भर भूखा प्यासा रहा और जिमा हम बिस्तरी से बचा तो रोजा न हुआ। मसला 19। सहरी खाना भी नियत है, ख्वाह रमजान के रोजे के लिए हो या किसी और रोजे के लिए, मगर जब सहरी खाते वक्त यह इरादा है कि सुबह को रोजा न होगा तो सहरी खाना नियत नहीं। मसला 20। रमजान के हर रोजे के लिए नई नियत की जरूरत है, पहली या किसी तारीख में पूरे रमजान के रोजे की नियत कर ली तो यह नियत सिर्फ उसी एक दिन के हक में है, बाकी दिनों के लिए नहीं। मसला 21। यह तीनों यानी रमजान के अदा और नफल व नजरे मुअय्यन मुतलकन रोजे की नियत से हो जाते हैं, खास इन्हीं की नियत जरूरी नहीं, यूं ही नफल की नियत से भी अदा हो जाते हैं, बल्कि गैर मरीज व गैर मुसाफिर ने रमजान में किसी और वाजिब की नियत की जब भी उसी रमजान का होगा। मसला 22। मुसाफिर और मरीज अगर रमजान शरीफ में नफल या किसी दूसरे वाजिब की नियत करें तो जिसकी नियत करेंगे वह होगा रमजान का नहीं, और मुतलक रोजे की नियत करे तो रमजान का होगा। मसला 23। नजरे मुअय्यन यानी फला दिन रोजा रखूंगा, इसमें अगर उस दिन किसी और वाजिब की नियत से रोजा रखा तो जिसकी नियत से रोजा रखा यह हुआ, मन्नत की कज़ा दे। मसला 24। रमजान के महीने में कोई रोजा रखा और उसे यह मालूम न था कि यह माह रमजान है जब भी रमजान ही का रोजा हुआ। मसला 25। कोई मुसलमान दारुल हरब में कैद था और हर साल यह सोचकर कि रमजान का महीना आ गया, रमजान के रोजे रखे बाद को मालूम हुआ कि किसी साल भी रमजान में न हुए बल्कि हर साल रमजान से पेशतर पहले हुए, तो पहले साल का तो हुआ ही नहीं कि रमजान से पेशतर रमजान का रोजा हो नहीं सकता, और दूसरे तीसरे साल की निस्बत यह है कि अगर मुतलक रमजान की नियत की थी तो हर साल के रोजे गुजरे हुए साल के रोजे की कज़ा हैं, और अगर हर साल के रमजान की नियत से रखे तो किसी साल के न हुए। मसला 26। अगर सूरत मज़कूरा में यानी ऊपर जो सूरत जिक्र हुई उसमें तहरी की यानी सोचा और दिल में यह बात जमी कि यह रमजान का महीना है और रोजा रखा मगर हकीकत में रोजे शव्वाल के महीने में हुए, तो अगर रात से नियत की तो हो गए, क्योंकि कज़ा में कज़ा की नियत शर्त नहीं बल्कि अदा की नियत से भी कज़ा हो जाती है। फिर अगर रमजान व शव्वाल दोनों 30-30 दिन या 29-29 दिन के हैं तो एक रोजा और रखे की ईद का रोजा मना है, और अगर रमजान 30 का था और शव्वाल 29 का तो 2 और रखे, और रमजान 29 का था और यह 30 का तो हो गए, और अगर वह महीना जिलहिज्जा का था तो अगर दोनों 30-30 या 29 के हैं तो 4 रोजे और रखे, और रमजान 30 का था यह 29 का तो 5, और बिल अक्स यानी इसका उल्टा हुआ तो 3 रखे। गर्ज मना किए हुए रोजे निकालकर तादाद पूरी करनी होगी जितने रमजान के दिन थे। मसला 27।
अदाए रमजान और नजरे मुअय्यन और नफल के अलावा बाकी रोजे मसलन कज़ाए रमजान नजरे गैर मुअय्यन और नफल की कज़ा, यानी नफली रोजा रखकर तोड़ दिया था उसकी कज़ा, नजरे मुअय्यन की कज़ा और कफ्फारे का रोजा, और हर्म में शिकार करने की वजह से जो रोजा वाजिब हुआ वह, और हज में वक्त से पहले सर मुंडाने का रोजा और तमत्तो का रोजा, इन सब में बिल्कुल सुबह सादिक चमकते वक्त या रात में नियत करना जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि जो रोजा रखना है खास उस मुअय्यन की नियत करे, और इस रोजों की नियत अगर दिन में की तो नफल हुए फिर भी उनका पूरा करना जरूरी है। तोड़ेगा तो कज़ा वाजिब होगी, अगरचे यह उसके इल्म में हो कि जो रोजा रखना चाहता है वह नहीं होगा बल्कि नफल होगा। मसला 28। यह गुमान करके कि उसके जिम्मे रोजे की कज़ा है, रोजा रखा, अब मालूम हुआ कि गुमान गलत था तो अगर फौरन तोड़ दे तो तोड़ सकता है, अगरचे बेहतर यह है कि पूरा कर ले, और अगर फौरन न तोड़ा तो अब नहीं तोड़ सकता, तोड़ेगा तो कज़ा वाजिब है। मसला 28। यह गुमान करके कि उसके जिम्मे रोजे की कज़ा है, रोजा रखा, अब मालूम हुआ कि गुमान गलत था तो अगर फौरन तोड़ दे तो तोड़ सकता है, अगरचे बेहतर यह है कि पूरा कर ले, और अगर फौरन न तोड़ा तो अब नहीं तोड़ सकता, तोड़ेगा तो कज़ा वाजिब है। मसला 29। रात में कज़ा रोजे की नियत की सुबह को उसे नफल करना चाहता है तो नहीं कर सकता। मसला 30। नमाज पढ़ते में रोजे की नियत की तो यह नियत सही है। मसला 31। कई रोजे कज़ा हो गए तो नियत में यह होना चाहिए कि इस रमजान के पहले रोजे की कज़ा, दूसरे की कज़ा, और अगर कुछ इस साल के कज़ा हो गए, कुछ पिछले साल के बाकी हैं, तो यह नियत होनी चाहिए कि इस रमजान की और उस रमजान की कज़ा, और अगर दिन और साल को मुअय्यन न किया जब भी हो जाएंगे। मसला 32। रमजान का रोजा जानबूझकर तोड़ा था तो उस पर उस रोजे की कज़ा है, और 60 रोजे कफ्फारे के, अब उसने 61 रोजे रख लिए, कज़ा का दिन मुअय्यन न किया तो हो गया। मसला 33। यौम शक के दिन यानी शबान की 30वीं तारीख को नफले खालिस की नियत से रोजा रख सकते हैं, और नफल के सिवा कोई और रोजा रखा तो मकरूह है, ख्वाह नियत मुअय्यन की हो या तरहुद यानी शक वाली हालत के साथ, यह सब सूरतें मकरूह हैं। फिर अगर रमजान की नियत है तो मकरूह तहरीमी है, वरना मुकीम के लिए तंजीही, और मुसाफिर ने अगर किसी वाजिब की नियत की तो कराहत नहीं। फिर अगर उस दिन का रमजान होना साबित हो जाए तो मुकीम के लिए बहरहाल रमजान का रोजा है, और यह जाहिर हुआ कि वह शाबान का दिन था और नियत किसी वाजिब की थी, तो जिस वाजिब की नियत थी वह हुआ, और अगर कुछ हाल न खुला तो वाजिब की नियत बेकार गई, और मुसाफिर ने जिसकी नियत की बहरहाल वही हुआ। मसला 34। अगर 30वीं तारीख ऐसे दिन हुई कि उस दिन रोजा रखने को आदी था तो उसे रोजा रखना अफजल है। मसलन कोई शख्स पीर या जुमेरात का रोजा रखा करता है और 30वीं उसी दिन पड़ी तो रखना अफजल है। यूं ही अगर चंद रोज पहले से रख रहा था तो अब शक वाले दिन में कराहत नहीं। कराहत उसी सूरत में है कि रमजान से 1 या 2 दिन पहले रोजा रखा जाए, यानी सिर्फ 30 शबान को या 29 और 30 को। मसला 35। अगर न तो उस दिन रोजा रखने का आदी था न कई रोज पहले से रोजे रखे, तो अब खास लोग रोजा रखें और अवाम न रखें, बल्कि अवाम के लिए यह हुक्म है कि जहवे कुबरा तक रोजे की तरह रहें। अगर उस वक्त तक चांद का सबूत हो जाए तो रमजान के रोजे की नियत कर लें, वरना खा पी लें। खवास से मुराद यहाँ उल्मा ही नहीं बल्कि जो शख्स यह जानता हो कि शक वाले दिन में इस तरह रोजा रखा जाता है वह खवास में है, वरना अवाम में। मसला 36। शक वाले दिन के रोजे में यह पक्का इरादा कर ले कि यह रोजा नफल है, तरबुद यानी शक वाली हालत न रहे। यूं न हो कि अगर रमजान है तो यह रोजा रमजान का वरना नफल का, या यूं कि अगर आज रमजान का दिन है तो यह रोजा रमजान का है वरना किसी और वाजिब का, कि यह दोनों सूरतें मकरूह हैं।
پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے تو فرض رمضان ادا ہوگا، ورنہ دونوں صورتوں میں نفل ہے اور گناہگار بہرحال ہوا، اور یوں بھی نیت نہ کرے کہ یہ دن رمضان کا ہے تو روزہ ہوا، اور اگر نفل کا پورا ارادہ ہے مگر کبھی دل میں یہ خیال گزر جاتا ہے کہ شاید آج رمضان کا دن ہو تو اس میں حرج نہیں۔ مسئلہ 37۔ عوام کو جو یہ حکم دیا گیا کہ جہوہ کبریٰ تک انتظار کریں، جس نے اس پر عمل کیا مگر بھول کر کھا لیا، پھر اس دن کا رمضان ہونا ظاہر ہوا تو روزے کی نیت کر لیں، ہو جائے گا کہ انتظار کرنے والا روزہ دار کے حکم میں ہے، اور بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان چیزوں کا بیان ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تنبیہ: اس باب میں ان چیزوں کا بیان ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا رہا یہ امرت بات کہ ان سے روزہ مکروہ بھی ہوتا ہے یا نہیں، اس سے اس باب کو تعلق نہیں، نہ یہ کہ فعل جائز ہے یا ناجائز۔ مسئلہ 1۔ بھول کر کھایا یا پیا یا ذمہ کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ مسئلہ 2۔ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گناہگار ہوگا، مگر جبکہ وہ روزہ دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ بعض مشائخ نے کہا جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں بلکہ قوت و ضعف، کمزوری کا لحاظ ہے۔ لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا کبھی ہو تو یاد دلانا واجب۔ مسئلہ 3۔ مکھی یا دھول یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا گلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، اور اگر خود قصدن دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر کی بتی وغیرہ خوشبو سلگتی تھی اس نے منہ قریب کر کے دھونے کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر روزہ یاد ہو اور حقہ پینے والا اگر پیے تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ مسئلہ 4۔ بھری سنگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ 5۔ بوسہ لیا مگر انجال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا، یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انجال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا ذمہ وغیرہ کے خیال کرنے سے انجال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا ہو، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ 6۔ غسل کیا اور پانی کی کھنکی اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا ہڑ چوسی اور تھوک نگل گیا مگر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف بہت تھوڑی چیز معمولی سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔ مسئلہ 7۔
रोजादार के पेट में किसी ने नेजा या तीर भोंक दिया, अगरचे उसकी भाल या पैकान फल पेट के अंदर रह गई या उसके पेट में झिल्ली तक जख्म था, किसी ने कंकरी मारी की अंदर चली गई तो रोजा नहीं टूटा, और अगर खुद उसने यह सब किया और भाल या पैकान या कंकरी अंदर रह गई तो रोजा जाता रहा। मसला 8, बात करने में थूक से होंठ तर हो गए और उसे पी गया, मुंह से राल टपकी मगर तार टूटा न था, उसे चढ़ाकर पी गया, नाक में रेंठ आ गई बल्कि नाक से बाहर हो गई मगर मुनक्ता अलग न हुई थी कि उसे चढ़ाकर निगल गया, या खंकार मुंह में आया और खा गया, अगरचे कितना ही हो रोजा न जाएगा मगर इन बातों से एहतियात चाहिए। मसला 9, मक्खी हल्क में चली गई रोजा न गया और कसदन निगली तो जाता रहा। मसला 10, गैरे सबीलैन में जिमा किया यानी शर्मगाहों के अलावा मजा हासिल किया तो जब तक इंजाल न हो रोजा न टूटेगा। यूं ही हाथ से मनी निकालने में अगरचे यह सख्त हराम है कि हदीस में उसे मलून फरमाया। मसला 11, चौपाया या मुर्दा से जिमा किया और इंजाल न हुआ तो रोजा न गया और इंजाल हुआ तो जाता रहा। मादा जानवर का बोसा लिया या उसकी फर्ज पेशाब की जगह को छुआ तो रोजा न गया, अगरचे इंजाल हो गया। अगरचे यह काम गैर इस्लामी व नाजायज है। मसला 12, एहतिलाम हुआ या गीबत की तो रोजा न गया, अगरचे गीबत बहुत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद में गीबत करने की निस्बत गीबत जिना से भी सख्त तर है, अगरचे गीबत की वजह से रोजे की नूरानियत जाती रहती है। मसला 13, जनाबत की हालत में सुबह की बल्कि अगरचे सारे दिन जुनूब रहा रोजा न गया मगर इतनी देर तक कसदन जानबूझकर गुस्ल न करना कि नमाज क़ज़ा हो जाए, गुनाह व हराम है। हदीस में फरमाया कि जुनूब बेगुसला जिस घर में होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मसला 14, जिन्न यानी परी से जिमा किया तो जब तक इंजाल न हो रोजा न टूटेगा, यानी जबकि इंसानी शक्ल में न हो और इंसानी शक्ल में हो तो वही हुक्म है जो इंसान से जिमा करने का है। मसला 15, तिल या तिल के बराबर कोई चीज चबाई और थूक के साथ हल्क से उतर गई तो रोजा न गया मगर जबकि उसका मजा हल्क में महसूस होता हो तो रोजा जाता रहा। रोजा तोड़ने वाली चीजों का बयान। मसला 1, खाने पीने जिमा करने से रोजा जाता रहता है जबकि रोजादार होना याद हो। मसला 2, हुक्का सिगरेट चर्स पीने से रोजा जाता रहता है अगरचे अपने ख्याल में हल्क तक धुआं न पहुंचाता हो, बल्कि पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोजा जाता रहेगा, अगरचे पीक थूक दी हो कि उसके बारीक अज्जा जरूर हल्क में पहुंचते हैं। मसला 3, शक्कर वगैरह ऐसी चीजें जो मुंह में रखने से घुल जाती हैं, मुंह में रखी और थूक निकल गया रोजा जाता रहा। यूं ही दांतों के दरमियान कोई चीज चने के बराबर या ज्यादा थी उसे खा गया या कम ही थी मगर मुंह से निकालकर फिर खा लिया, दांतों से खून निकलकर हल्क से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मजा हल्क में महसूस हुआ तो इन सब सूरतों में रोजा जाता रहा, और अगर कम था और मजा भी महसूस न हुआ तो नहीं। मसला 4, रोजे में दांत उखड़वाया और खून निकलकर हल्क से नीचे उतरा, अगर सोते में ऐसा हुआ तो रोजे की कज़ा वाजिब है। मसला 5, कोई चीज पाखाने के मकाम में रखी अगर उसका दूसरा सिरा बाहर रहा तो नहीं टूटा वरना जाता रहा, लेकिन अगर वह तर है और उसकी रुतूबत तरी अंदर पहुंची तो मुतलकन जाता रहा। यही हुक्म औरत की शर्मगाह का है। शर्मगाह से मुराद इस बाब में फर्जे दाखिल है। यूं ही अगर डोरे में बोटी बांधकर निगले ली और डोरे का दूसरा किनारा बाहर रहा और जल्द निकाल ली कि गलने न पाई तो नहीं गया, और अगर दूसरा किनारा भी अंदर चला गया या बोटी का कुछ हिस्सा अंदर रह गया तो रोजा जाता रहा। मसला 6, औरत ने पेशाब के मकाम में रुई या कपड़ा रखा और बिल्कुल बाहर न रहा, रोजा जाता रहा।
اور خشک انگلی پاخانے کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں تو روزہ نہ گیا، اور بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو جاتا رہا، بشرطے کی پاخانے کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے یعنی پاخانے کے مقام میں دوا ڈالتے وقت حکنا کا سرا رکھتے ہیں۔ مسئلہ 7، مبالغے کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ حکنا رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، روزہ جاتا رہا، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ مسئلہ 8، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا اگرچہ مثانے تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو جاتا رہا۔ مسئلہ 9، دماغ یا شکم پیٹ کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی روزہ جاتا رہا، خواہ وہ دوا تر ہو یا خشک، اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں اور دوا تر تھی جب بھی جاتا رہا اور خشک تھی تو نہیں۔ مسئلہ 10، حکنا لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ جاتا رہا، اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں۔ مسئلہ 11، کلی کر رہا تھا کہ بلاکس پانی حلق اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جب کہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگرچہ قصدن جان بوجھ کر ہو، یوں ہی کسی نے روزہ دار کی طرح۔ مسئلہ 12، سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں جا رہا، روزہ جاتا رہا۔ مسئلہ 13، دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا، روزہ جاتا رہا۔ مسئلہ 14، ڈورا باٹا اسے تر کرنے کے لیے منہ پر گزارا، پھر دوبارہ و تیبارہ یوں ہی کیا، روزہ نہ جائے گا مگر جبکہ ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نگل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ مسئلہ 15، آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ 16، پاخانے کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔ مسئلہ 17، عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت، یہاں مباشرت سے مراد چومنا وغیرہ ہے کہ یا گلے لگایا اور انجال ہو گیا یعنی منی باہر ہو گئی تو روزہ جاتا رہا، اور عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انجال ہو گیا تو روزہ نہ گیا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو فاسد نہ ہوا اگرچہ انجال ہو گیا۔ مسئلہ 18، قصدن بھر منہ کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو متلقن روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم کی تو نہیں، اور بلا اختیار کہہ ہو گئی تو بھر منہ ہے یا نہیں، اور بہرحال وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا کہ نہ لوٹی نہ لوٹائی تو اگر بھر منہ نہ ہو روزہ نہ گیا اگرچہ لوٹ گئی یا اس نے خود لوٹائی اور بھر منہ ہے اور اس نے خود لوٹائی تو اگر اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں۔ مسئلہ 19، کہ احکام اس وقت ہیں کہ قے میں کھانا آئے یا صفا پت یا خون، اور اگر بلغم آیا تو متلقن روزہ نہ ٹوٹا۔ مسئلہ 20، رمضان میں بلا عذر جو شخص علانیہ قصدن یعنی کھلے عام کھائے پیے تو حکم ہے اسے قتل کیا جائے۔ زکوٰۃ کے فقہی مسائل۔ مسئلہ، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق اور ادا میں دیر کرنے والا گناہگار و مردود الشہادت ہے یعنی جس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ مسئلہ، مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، مثلاً فقیر کو زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلا دیا، زکوٰۃ ادا نہ ہوئی کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا، ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یا لے جائے تو ادا ہو گئی، یوں ہی زکوٰۃ کی نیت سے فقیر کو کپڑا دے دیا یا پہنا دیا ادا ہو گئی۔
मसला फकीर को बनियते ज़कात मकान रहने को दिया, ज़कात अदा न हुई कि माल का कोई हिस्सा उसे नहीं दिया बल्कि मनफत फायदे का मालिक किया। मसला मालिक करने में यह भी जरूरी है ऐसे को दे जो कब्जा करना जानता हो, यानी ऐसा न हो कि जिसे ज़कात दी जाए वह फेंक दे या धोखा खाए वरना अदा न होगी। मसलन निहायत छोटा बच्चा या पागल को देना, और अगर बच्चे को इतनी अक्ल न हो तो उसकी तरफ से उसका बाप जो फकीर हो या वसी, वह शख्स जिसे वसीयत की गई हो या जिसकी निगरानी में है, कब्जा करे। शबे कद्र कब? हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह रात रमजान की आखिरी 10 रातों में होती है। जो शख्स अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए उसमें क़याम करता है, उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। यह ताक रात है 27वीं, 29वीं, 25वीं, 23वीं या 21वीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस रात की निशानी यह है कि यह रात बिल्कुल साफ और रोशन होती है, ऐसे मालूम होता है कि उसमें चांद चमक रहा हो। उसमें सर्दी होती है न गर्मी, सुबह तक उस रात को कोई सितारा नहीं टूटता। उसकी एक निशानी यह भी है कि जब सुबह सूरज तुलू होता है तो उसकी शुआएं तेज नहीं होती बल्कि 14वीं के आए चांद की तरह होता है। उस दिन सूरज के साथ शैतान नहीं निकलता। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 5 सफ़ा 324। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शबे कद्र को ढूंढना चाहता है वह उसको आखिरी अशरे में तलाश करे। मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 369। माह रमजान आया सफ़ा 32-33। मशहूर 27वीं रात है। शबे कद्र रमजान की किस तारीख को है, इस बारे में इख्तिलाफ है और बहुत सी रिवायतें वारिद हैं जिनकी तरफ इशारा हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमा दिया। इसके अलावा दूसरे हजरात ने कहा है कि शबे कद्र रमजान के आखिरी 10 रातों के अलावा दूसरी रातों में है। तफसील के लिए शरह सही मुस्लिम जिल्द 3 सफ़ा 209 का मुताला करें। मगर मशहूर और अक्सर उल्मा की राय यही है कि रमजानुल मुबारक की 27वीं रात शबे कद्र है। दलाइल और क्राइन मुलाहजा हो। एक अल्लामा कुरतबी फरमाते हैं कि शबे कद्र के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सरियत इस पर है कि शबे कद्र 27वीं रात है। तफसीरे कुरतबी जिल्द 20 सफ़ा 134। 2 इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के 9 हुरूफ हैं और इसका जिक्र सूरह कद्र में 3 बार हुआ और 3 का हासिल ज़र्ब 3x9 27 होता है। इसलिए शबे कद्र 27वीं रात को है। तफसीरे कबीर जिल्द 23 सफ़ा 30। 3 एक दलील यह भी है कि सूरतुल कद्र में 30 कलेमात हैं, 27वां कलमा हिया है। तफसीरे कुरतबी जिल्द 20 सफ़ा 136। 4 हजरत ज़िर बिन जुबैश रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि मैंने हजरत कब रजी अल्लाह अन्हो से कहा, तुम्हारे भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो शख्स तमाम साल क़याम करेगा वह लैलतुल कद्र को पालेगा। हजरत कब ने फरमाया, अल्लाह ताला इब्ने मसूद पर रहम फरमाए। उनका इरादा यह था कि कहीं लोग एक रात पर भरोसा करके न बैठ जाएं, वरना वह खूब जानते थे कि शबे कद्र रमजान में है और रमजान के आखिरी अशरे में है और वह रमजान की 27वीं रात है। फिर उन्होंने बगैर इंशाअल्लाह कहे कसम खाकर कहा कि शबे कद्र रमजान की 27वीं रात है। मैंने कहा, ए अबुल मंजर, तुम यह बात इतने यकीन से किस वजह से कह रहे हो? उन्होंने कहा, उस दलील या निशानी की बिना पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई है, और वह यह है कि उस रात के बाद जब सूरज तुलू होता है तो उसमें शुआएं नहीं होती। मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 370। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 5 सफ़ा 130।
5 हज़रत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि एक शख्स ने रमजान की 27वीं रात में शबे कद्र को ख्वाब में देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा ख्वाब आखिरी 10 दिनों में वाले हुआ है, लिहाजा शबे कद्र को आखिरी अशरह की ताक रातों में तलाश करो। मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 369। माह रमजान आया, सफ़ा 34-35।